اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، میں اس وقت عمرے کے سفر پر نکل چکا ہوں اور کل ہی میں نے کہا تھا کہ اب 15 دن تک انشاءاللہ آپ کو تمام خبریں ملتی رہے گی، لیکن آواز کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں۔ جی ہاں، اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں ایک خبر آ رہی ہے کہ رام مندر بابری مسجد سے 3 کلومیٹر دور بن رہا ہے، یعنی جہاں بابری مسجد تھی، بابری مسجد شہید کی گئی، وہاں سے 3 کلومیٹر کی دوری پر رام مندر بن رہا ہے۔ ایسی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی چل رہی ہے۔ شیو سینا کے قدآور نیتا اور دبنگ لیڈر سنجے راؤت کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، لیکن آلٹ نیوز کے فیکٹ چیکر محمد زبیر نے سنجے راؤت سمیت سوشل میڈیا کے تمام دعووں کو غلط قرار دیا ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کے ایودھیا میں 22 جنوری کو رام مندر پران پرتشٹھا پروگرام کا جو انعقاد ہو رہا ہے، ایودھیا میں آج سے 7 روزہ انوشٹھان بھی شروع ہو گیا ہے اور پروگرام کی تیاریاں تقریباً مکمل کر لی گئی ہے۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر رام مندر سے متعلق بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ رام مندر کی تعمیر بابری مسجد سے 3 کلومیٹر کی دوری پر کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ایکس صارف ٹویٹر نے گوگل میپ کا ایک اسکرین شاٹ شیئر کر کے لکھا ہے کہ رام مندر اور بابری مسجد سے متعلق گوگل میپ 2 الگ الگ مقامات پر نظر آ رہے ہیں۔ ایک جگہ تو وہ ہے جہاں بابری مسجد تھی اور دوسری جگہ وہ ہے جہاں رام مندر بن رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رام مندر وہاں نہیں بن رہا ہے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہے۔ آلٹ نیوز کے فیکٹ چیکر محمد زبیر نے سنجے راؤت سمیت سوشل میڈیا کے تمام دعووں کو جھوٹا، غلط اور گمراہ کرنے والا قرار دیا ہے۔ ناظرین، متھرا شاہی عیدگاہ کو لے کر ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ متھرا شاہی عیدگاہ سروے پر روک لگا دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کو مسلم فریق کی طرف سے دائر عرضی سننے کے آدیش دیے ہیں۔
मुबहम दरखास्त दायर करने पर हिंदू तंजीमों को नोटिस भी जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को उत्तर प्रदेश के मथुरा में वाक़े शाही मस्जिद के सर्वे के हुक्म पर रोक लगा दी है। केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट दरखास्तों के बरकरार रखने के खिलाफ मस्जिद के फरीक की दरखास्त की समाअत करे। जस्टिस संजय खन्ना और दीपांकर दत्त की एक बेंच ने 14 दिसंबर 2023 को दिए गए ऑर्डर के निफाज पर रोक लगा दी, जिसके जरिए उसने मस्जिद के इहाते के सर्वे की निगरानी के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की तकर्री पर रजामंदी जाहिर की थी, जिसके लिए हिंदू फरीक का दावा था कि यहां पर एक मंदिर था जिसके यहां पर इशारे मौजूद है। बेंच ने कहा कि कुछ कानूनी मसाइल है जो पैदा हुए हैं और सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की तकर्री पर मुश्तमिल हाई कोर्ट में पेश की गई दरखास्त पर सवाल उठाए गए हैं। यानी खुलासा ये कि मथुरा शाही ईदगाह सर्वे का जो ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नाज़रीन, बिहार से बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही है कि बिहार में मॉब लिंचिंग हुजूमी तशद्दुद में 4 मुस्लिम नौजवानों को शिकार बनाया गया है। यानी 4 मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग की गई है। बिहार के औरंगाबाद में कार पार्किंग को लेकर हंगामा हुआ। महलूक नौजवानों में से एक की फायरिंग से हिंदू बुजुर्ग की मौत के बाद भीड़ ने सभी को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। यानी एक की फायरिंग से मौत हुई है और बाकी को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला है। 4 मुस्लिम नौजवानों की बिहार के औरंगाबाद में मॉब लिंचिंग हुई है। यह वाकया औरंगाबाद का है, जहां पार्किंग विवाद को लेकर एक ऐनी शाहिद ने बताया है कि नाराज लोगों ने 4 लोगों को इस कदर मारा पीटा कि 2 की तो जगह ही पर मौत हो गई, जबकि 2 शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। महलूकुन की शनाख्त अरमान अहमद, मोहम्मद जाहिद और वकील अंसारी और चमन मंसूरी के तौर पर की गई है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक यह वाकया जापला नबी नगर रोड पर औरंगाबाद के नबी नगर थाना इलाके में कैसरिया मोड़ के करीब पेश आया है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में अब लगातार कुछ महीनों से मॉब लिंचिंग के वाकयात, मुस्लिम नौजवानों पर हमलों के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। आइए उत्तर प्रदेश से फिर एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है, जिसे मैं अफसोसनाक खबर कहूंगा। यानी उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी हरकतें की जा रही है और मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करके हिंदुत्व टोले को योगी आदित्यनाथ की हुकूमत खुश करने का काम कर रही है। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला से कि तब्दीली मजहब मामले में एक मौलाना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में शादीशुदा हिंदू खातून से शादी करके मजहब बदलने का इल्जाम उन पर लगाया गया है और 5 अफराद को मौलाना समेत गिरफ्तार किया गया है। मुस्करा थाना इलाके के मिसगांव के रिहायशी मनीष गुप्ता अपनी बीवी आकांक्षा के साथ छन्नी इलाके में किराए के मकान में रहते थे। उनका इल्जाम है कि डिग्री कॉलेज में जेर तालीम बीएससी का तालिब इल्म अनीस खान उनकी बीवी को किडनैप करके अपने साथ ले गया और उससे शादी कर ली। मजहब तब्दील करने के बाद उसका नाम आकांक्षा से बदलकर फातिमा रख दिया गया। उसका एक वीडियो भी मंजर आम पर आया जिसमें मौलाना निकाह पढ़ा रहे हैं। मुतासरा मनीष ने मुलजिम के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौलाना समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोहिमा से। आप जानते हैं कि इस वक्त राहुल गांधी की न्याय यात्रा का गुज़िश्ता कल 3रा दिन था। गुज़िश्ता कल राहुल गांधी बीजेपी हुकूमत पर जमकर बरसे और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये राम मंदिर का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये नरेंद्र मोदी और आरएसएस का फंक्शन है। यह नरेंद्र मोदी और आरएसएस का प्रोग्राम है। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में होने जा रहे रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम मोदी और आरएसएस का फंक्शन है। आरएसएस और बीजेपी ने 22 तारीख को
एक जो प्रोग्राम सजाया है वो किसी राम मंदिर का नहीं बल्कि अपना सेहरा पहनने के लिए ये प्रोग्राम सजाया है। कांग्रेस सदर ने इसी वजह से वहां जाने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम सभी मज़ाहिब के साथ हैं, कांग्रेस से जो भी जाना चाहता है बिल्कुल जा सकता है। राहुल गांधी ने ये बातें भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा के तीसरे दिन कोहिमा यानी नागालैंड के विश्वमा गांव से यात्रा की शुरुआत करते हुए कही है और मोदी जी पर और बीजेपी पर राहुल गांधी गुज़िश्ता कल जमकर बरसे हैं। दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी राम मंदिर की मुखालिफत नहीं की, लेकिन बीजेपी को सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना था और 2024 के इलेक्शन में भारतीयों को बेवकूफ बनाकर और हिंदुत्व टोले को खुश करना था, इसलिए उसने राम मंदिर का यह मुद्दा बनाया है। नाज़रीन, इस वक्त योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान मेरी निगाहों के सामने आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार बीजेपी 400 सीटें पार कर लेगी, यानी 400 से ऊपर सीटें बीजेपी जीतेगी। योगी आदित्यनाथ के इस बड़े बयान पर लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को पूरा मशीनों पर यकीन है कि मशीनें पूरी तरीके से उनका साथ देगी और मशीन में चाहे पंजे का बटन दबे या साइकिल का बटन दबे या हाथी का बटन दबे, निकलेगा तो खिलेगा तो कमल ही। यानी योगी आदित्यनाथ को पूरा यकीन है मशीनों पर, इसलिए बड़े दावे के साथ वो बयान दे रहे हैं कि इस बार बीजेपी 400 सीटें पार करेगी और उनको यकीन है कि राम मंदिर का जो अधूरा काम हमने ओपनिंग किया है और पूरे मुल्क के भक्तों को बेवकूफ बनाया है, ये भक्त राम मंदिर के ओपनिंग से बड़े खुश हो जाएंगे और 400 के ऊपर सीटें पार हो जाएगी। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए, बड़ी खबर आ रही है रियासत बंगाल से। जी हां, 22 जनवरी को ममता दीदी की सद्भावना रैली शुरू होगी। आप जानते हैं कि 22 जनवरी को भव्य ओपनिंग होने जा रहा है मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस के हाथों से राम मंदिर का। यानी 22 जनवरी को मुल्क में एक तरफ नफरतों का माहौल बीजेपी आरएसएस बना रही है और 22 जनवरी को राम मंदिर का ओपनिंग कर रही है, लेकिन ममता दीदी कहती है कि अभी मुल्क को बचाने के लिए और मुल्क से हिंदू मुसलमानों में नफरतें खत्म करने के लिए और मंदिर मस्जिद के मुद्दे को खत्म करने के लिए मैं सद्भावना रैली 22 जनवरी को शुरू करूंगी। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वजीर आला बंगाल की रैली मसाजिद, मंदिरों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों से गुजरेगी। यानी मगरबी बंगाल के दबंग नेता ममता दीदी 22 जनवरी को सद्भावना रैली निकालकर नफरतों के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है। यानी मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस मुल्क में नफरतों का माहौल बना रहे हैं और सद्भावना रैली के जरिए से ममता दीदी प्यार, मोहब्बत, एकता, अमन और शांति का माहौल बनाना चाहती है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया और गुजरात समेत मुंबई वगैरह के इलाकों में जोर से पतंगबाजी हुई है, लेकिन खबरें आ रही है कि जो चीनी मांझा पतंग में इस्तेमाल किया जा रहा है और मार्केट में धूम से बिक रहा है, इस चीनी मांझे की वजह से हजारों परिंदों की गर्दनें कटी है और सिर्फ परिंदों नहीं बल्कि कई इंसानों की गर्दनें भी कटी है। बेजबानों की जान का दुश्मन बन गया है चीनी मांझा। 800 से ज्यादा जख्मी होने की खबर तो सिर्फ मुंबई से आ रही है और ऐसे ही एक शख्स की जो बाइक पर जा रहा था उसकी गर्दन कटने की भी खबर आ रही है और 1000 से ज्यादा परिंदों की गर्दनें कटी है। ये तो सिर्फ मुंबई की खबरें हैं और गुजरात में कितने परिंदों की गर्दनें कटी है और कितने लोग जख्मी हुए हैं इसकी इत्तला नहीं है, लेकिन चीनी मांझा जो मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है, ये बेजबान परिंदों की जान का दुश्मन बल्कि इंसानों की जान का दुश्मन भी बन गया है। मगर हुकूमत
कड़ी अंदाज में इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बड़े घटिया और नीच तरीके से हुकूमत को गिराया गया। जी हाँ, 50 खोखे का नारा लगाया गया और फिर आपने सारा माहौल देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में जमहूरियत और सेकुलरिज्म का मर्डर और कत्ल किया और जमहूरी तरीके से जीती हुई सरकार को गिराया। इसलिए उद्धव ठाकरे ने अभी शिंदे हुकूमत को चैलेंज करके ये कहा और नार्वेकर जिन्होंने अभी फैसला सुनाया है उनको चैलेंज करके कहा कि शिंदे और नार्वेकर बिना किसी पुलिस सिक्योरिटी के आवाम के सामने आए, जनता के सामने आए, तब मालूम होगा कि असल शिवसेना किसकी है। यानी उद्धव ठाकरे ने बताया कि ये दोनों भी निकलेंगे तो सिर्फ पुलिस सिक्योरिटी में निकलेंगे, पुलिस सिक्योरिटी के बगैर निकल के दिखाएं तो अवाम इनको ऐसा सबक सिखाएगी, तब पता चल जाएगा कि असल शिवसेना किसकी है। खैर, राहुल नार्वेकर ने यह बयान दिया है कि उद्धव ठाकरे को अदालत, गवर्नर, असेंबली स्पीकर पर भरोसा नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि सचमुच भरोसा नहीं है, क्योंकि राहुल नार्वेकर ने जो फैसला सुनाया है वो बिल्कुल झूठा फैसला और आवाम के, जनता के दिमाग के खिलाफ फैसला सुनाया है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी अहम खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। आप जानते हैं कि आलम इस्लाम की, पूरी दुनिया की एक मशहूर दीनी इल्मी शख्सियत है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के, लेकिन उनका ये बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि इस वक्त फलस्तीन की मदद मुसलमानों पर फर्ज है कि वो हर तरह से फलस्तीन की मदद करें। उनका एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग उम्रे पर उम्रा करते हैं तो और नफली उम्रे करते हैं, उम्रा फर्ज नहीं है, मैं ऐसे लोगों से कहता हूं कि नफली उम्रे का इरादा रखने वाले लोग अपनी रकम, अपने पैसे फलस्तीन के जिहाद में दें तो उससे ज्यादा सवाब मिलेगा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि इस वक्त तमाम नफली इबादत से अफजल इबादत गज्जा के लोगों और मुजाहिदीन की माली इमदाद है। कराची में हुर्मत अक्सा कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि मेरी राय है कि जो लोग नफली उम्रे का इरादा रखते हैं वो ये रकम फलस्तीन के जिहाद में दें तो उन्हें ज्यादा अजर व सवाब मिलेगा। उलमाए कराम नमाज फजर में कुनूत नाजिला का एहतमाम करें। उनका कहना था कि आलमी इस्लाम में बहुत सी जमीनों पर गैरों का कब्जा है, लेकिन यहाँ मसला सिर्फ जमीन का नहीं, न इस बात का है कि गैरों ने कब्जा किया है, असल मसला बैतुल मुक़द्दस का है। फलस्तीन का मसला मस्जिद अक्सा का है। उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज है इसे यहूदियों से आजाद कराए।